کہانی شروع ہوتی ہے میری نام کی لڑکی سے۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر میں گئی اور واش روم جاتی ہے تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے۔ ایک آدمی جس نے رین کوٹ پہنا ہوا ہے جو بارش میں پہنتے ہیں وہ ایک عورت کو مار رہا ہوتا ہے بہت ہی بے رحمی سے، اور اسی وقت وہ آدمی میری کی طرف دیکھ کر کہتا ہے تجھے تو یہی سب پسند ہے نا۔ اس نے نام ہی سر ہلایا۔ وہ کافی دنگ رہ جاتی ہے کیونکہ وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اس کا دوست جیمز ہوتا ہے جسے جیل میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ سوچتی ہے شاید یہ میرے دماغ کا وہم ہے۔ وہ جلدی سے دروازہ بند کرتی ہے اور اپنی دوائیاں کھاتی۔ دراصل کچھ ہی دنوں پہلے میری جیل سے چھوٹ کر باہر آئی کیونکہ اس نے اپنے اسی دوست جیمز کو آگ میں جلا دیا۔ پھر وہ ایک نئی جگہ پیٹرول پمپ پہ آ کر نوکری کے لیے انٹرویو دی۔ پمپ کے مالک کو جب پتا چلا کہ اس نے جرم کیا تھا، اس کا کریمنل ریکارڈ ہے، تو وہ وجہ پوچھتا۔ میری صاف کہہ دیتی کہ اس نے جو کیا وہ اس کی غلطی تھی اور اسے اس کی سزا مل چکی ہے کیونکہ وہ پیرول آفیسر کی سفارش پر آئی جس پر پمپ کا مالک اسے نوکری پر رکھ لیتا ہے۔ میری خوشی خوشی اس کا شکریہ ادا کرتی کیونکہ اس کے جیسی لوگوں کے لیے نوکری پانا آسان نہیں ہوتا۔ پھر اس کی دوست اسے گھر چھوڑ دیتی اور وہی شروعات والا سین ہمیں دکھایا جاتا ہے جب وہ دوائی کھا کر تھوڑی نارمل ہو۔ تبھی اس کا پیرول آفیسر اچانک اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر آفیسر کو شک ہوتا ہے کہ میری کچھ چھپا رہی ہے۔ جب وہ باتھ روم کا دروازہ کھولتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ میری کو سمجھاتے ہیں کہ اسے اپنی دوائیاں ٹائم پر لینی ہوں اور کسی کو یہ نہیں بتانا کہ اسے ایلوژن ہوتے ہیں، یعنی وہ وہم بھرے خیال دیکھتی ہے ورنہ اسے مینٹل ہاسپٹل میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد میری تھوڑا دماغ کو سکون دینے کے لیے پارک میں گھومنے جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اسے جیمز دکھائی دیتا ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے مڑی تو اس کی دوست کھڑی ہوتی ہے اور جب وہ دوبارہ دیکھتی ہے تو جیمز غائب ہو چکا تھا۔ اس کی دوست میری کو کھانے پر چلنے کا کہتی ہے۔ ریسٹورنٹ میں میری بتاتی ہے کہ اسے جیمز دکھا اور یہ کوئی ایلوژن نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ جیمز جیل سے بھاگ گیا، جو سن اس کی دوست یقین نہیں کرتی، پوچھتی ہے لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی بیچ میری کو پھر سے ایلوژن نظر آیا۔ اسے دکھائی دیتا ہے کہ اس کی دوست کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ اس کی دوست سمجھ گئی اور اسے ہوش میں لانے کے لیے میری کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی ہے جس سے وہ ہوش میں آ گئی۔ میری کو اب ڈر لگنے لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ سب کچھ اس کے دماغ کا خیال ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد ایک فون کال آتا ہے۔ کسی عورت کی آواز تھی جو کہتی ہے تو نے میری بیٹے کو مرتے دیکھا اور کچھ نہیں کیا، اب میں تجھے خود ماروں گی۔ یہ سن ڈرتے ہوئے میری فون کاٹ دی لیکن آواز بند نہیں ہوتی۔ وہ فون کی لائن ہی نکال دیتی ہے پر آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ تب آخر غصے میں آ کر وہ پورا فون ہی توڑ دیتی ہے۔ اب میری رات کی شفٹ پر جانے کے لیے اپنی دوست کے ساتھ نکلتی لیکن تبھی آسمان میں بادل گرجنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی بھی ٹائم تیز بارش ہو جائے۔ راستے میں وہ اپنی دوست سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ میری نے بتایا کہ اسے بارش کی راتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ جب وہ پیٹرول پمپ پہنچی تبھی تیز بارش شروع ہو گئی۔ اندر جاتے ہی اس کی نائٹ شفٹ کے ساتھی نے مسکراتے ہوئے اس کا ویلکم کیا اور کیش کاؤنٹر سے لے کر شفٹ کی ساری ذمہ داریاں سمجھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میری سب کچھ سمجھ گئی ہے تو وہ چلا گیا۔ اس کی دوست کہتی ہے کہ وہ صبح اسے لینے آئے گی، تب تک اپنا خیال رکھنا، اور وہ بھی نکل جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنی کار تک پہنچی کوئی رین کوٹ پہنا انسان جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا تھا اسے گھور رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے کار کی کھڑکی نیچے کی اور سگریٹ باہر پھینکی، وہ آدمی آگے آیا اور سیدھا ہتھوڑا اس کے چہرے پر دے مارا جس سے وہ کافی زخمی ہو گئی۔ پھر اسے کھینچ کر باہر لایا اور زبردستی وہاں سے لے جاتا ہے۔ حالانکہ وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی لیکن بارش کی آواز میں اس کی چیخیں کسی کو بھی سنائی نہیں دی۔ ادھر میری باہر نکلی اور اکیلے پن کی بوریت سے بچنے کے لیے سگریٹ جلا لی، لیکن تبھی وہی رین کوٹ والا آدمی اس کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ جب میری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں۔ واپس اندر آنے پر اسے عجیب سا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی دکان میں گھس آیا۔ وہ چاروں طرف دیکھتی ہے اور تبھی کوئی اس کے پیچھے سے گزرتا ہے جس پر اس کا دھیان نہیں جاتا۔ اسی بیچ کسی کا فون آتا ہے جو ایک عورت۔ وہ میری سے پوچھتی ہے کہ دکان کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے۔ میری ٹائم بتا کر فون کاٹ دیتی ہے لیکن کچھ ہی سیکنڈ بعد وہی عورت پھر سے کال کرتی ہے اور وہی سوال دہراتی ہے۔ پھر تیسری بار اور چوتھی بار لگاتار وہی سوال، جس سے اب میری پریشان ہو گئی۔ جیسے ہی وہ کچھ کہنے والی تھی فون سے آواز آتی ہے
तुम्हें दूसरों को मरते देखना पसंद है ना? अब ये वही आवाज थी जो उसने दिन में सुनी थी, इसीलिए घबरा कर उसने फोन काट दिया और अपनी दवाई खाती है। इसी बीच पहला कस्टमर अंदर आया जो एक ट्रक ड्राइवर था। अंदर आते ही मालिक को ढूंढने लगता है क्योंकि वो अक्सर यहाँ आता रहता है। फिर मैरी से मजाक में कहता है, तुम तो मेरी दोस्त जैसी लग रही हो। खैर अब सामान लेकर वो चला जाता, लेकिन उसका कार्ड वहीं छूट गया था, इसीलिए मैरी बाहर निकलती है। लेकिन तब तक ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर जा चुका। तभी सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। हैरत वाली बात तो ये थी कि उसके पूरे जिस्म को आग ने लपेटा हुआ था। ये देख मैरी की तो हालत ही खराब हो गई। डर की वजह से वो पीछे हटी, लेकिन किसी से टकरा जाती है जो और कोई नहीं बल्कि उसका दूसरा वर्कर कोलीग था, जिसे पंप के मालिक ने भेजा होता है कि वो जाकर देख कर आए कि मैरी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। अंदर आकर जब मैरी उसे ट्रक ड्राइवर का कार्ड दिखाती है तो वर्कर कहता है, अरे मैं जानता हूँ उसे, वो जानबूझकर ये छोड़कर गया क्योंकि ये उसकी चाल होती है लड़कियों को मुतासिर करने की। वो वापस जरूर आएगा, तब उसे दे देना। अब इनकी बातों के दौरान वर्कर मैरी से जेल वाली बात पूछ लेता है। मैरी ने भी साफ कह दिया कि हाँ मैं जेल में थी। फिर बताया कि मेरा दोस्त जेम्स दरअसल एक पागल सीरियल किलर था जिसने अब तक 35 लड़कियों को मार डाला था। शुरू में तो मुझे शक भी नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मैं गलती से बेसमेंट में चली गई जहाँ मैंने जेम्स को एक लड़की का खून करते हुए देख लिया। तब जेम्स ने मुझे धमकाया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरी और मेरी फैमिली की जान ले लेगा, इसीलिए डर की वजह से मैं खामोश रही। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हर बार जब जेम्स किसी को मारता तो मुझे जबरदस्ती साथ बिठाकर उसका जुर्म दिखाता। एक दिन जब जेम्स ने 35वीं लड़की को मार डाला तो मैं जो शर्मिंदगी में डूबी हुई थी सोच लिया कि अब बहुत हो गया है और मैंने जेम्स को मारने का फैसला। रात को उसके सोने के बाद पूरे घर में आग लगा दी, लेकिन किस्मत ने अजीब खेल खेला। दोनों की जान तो बच गई, लेकिन हम पूरी तरह जल गए, जिसमें जेम्स को तो उम्र कैद हो गई और मुझे जुर्म छुपाने की वजह से जेल भेज दिया गया, जिसका असर मेरे दिमाग पर बहुत गहरा पड़ा, जिसके बाद से ही मैं हर टाइम डर और वहम में जी रही हूँ। अब मुझे हर जगह जेम्स की परछाइयाँ नजर आती हैं। अब ये सारी बात सुनकर वर्कर को बहुत दुख हुआ और वो मैरी को तसल्ली देकर वहाँ से चला जाता है। इसी बीच दुकान में 2 कस्टमर्स आते हैं। मैरी जैसे बिल बनाने लगी तभी फोन बजने लगता है और उधर से वही पुराना गाना सुनाई देता है जो जेम्स खून करने से पहले बजाया करता था। मैरी ने झट से फोन रख दिया, उसकी डर से हालत खराब हो गई। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर कस्टमर्स घबरा कर वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते उन्होंने कहा कि वॉशरूम का फ्लश बंद है, जरा देख लीजिएगा। उधर वर्कर की कार बीच रास्ते में बंद हो जाती है। जैसे ही वो उतर कर देखता है, वही रेन कोट पहना आदमी आया और हथौड़े से उसके सर पर वार करके जख्मी कर देता है। मैरी वॉशरूम में हाथ धोने जाती है और जैसे ही शीशे में देखती है उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। मैरी सोचती है शायद ये फिर से कोई वहम। वो टॉयलेट में एक कार्ड और बालों का गुच्छा देखती है जिससे उसका दिल खराब होने लगा, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो वो कार्ड उसकी सबसे करीबी दोस्त का था जो उसे ड्रॉप करने आई थी, जिससे मैरी की होश उड़ गई। उसे अपनी दोस्त की फिक्र होने लगती। तभी टॉयलेट से खून से भरा हुआ हाथ बाहर निकल कर आया, मैरी को पकड़ लेता है। झटपटाकर वो पीछे जा गिरी, जिसके साथ ही एक खून से लथपथ औरत उसके सामने आकर चिल्लाती है कि तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। मैरी डर के आंखें बंद कर लेती है और खुद से कहती है ये सब झूठ है, ये मेरे दिमाग का खेल है, मेरे वहम है। और जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इन सब चीजों से डरकर अब वो वॉशरूम में और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाती और भागकर दुकान में वापस आ जाती है, जहाँ पर पेरोल ऑफिसर पहले से ही आए हुए। वो मैरी से उसका हालचाल पूछते हैं। मैरी बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और तब ऑफिसर वॉशरूम की तरफ चले जाते। तभी एक और कस्टमर अंदर आता है जिसने सर से पांव तक रेन कोट पहना हुआ। जब मैरी उसकी शक्ल देखती है तो चौंक गई कि ये क्या, ये तो जेम्स है। वो डरते हुए खुद को समझाती है कि ये सब असल में नहीं है, वहम है। तब वो आदमी उसे जोर का थप्पड़ मारता है जिससे उसे काफी दर्द हुई। मेरी सारी सूरत हाल की वजह से काफी परेशान हो गई। वो खुद तय नहीं कर पा रही थी कि ये सब कुछ सच है या उसका वहम। वो आंखें बंद करती और जब दोबारा खोलती है तो सामने वही इंसान अब एक औरत बन चुकी होती है रेनकोट में। वो औरत पेट्रोल लेने आई थी,
पैसे देकर सवाल करती है कि आज रात तक कितने बजे तक दुकान खोल के रखोगी। मैरी फौरन उसकी आवाज पहचान जाती। ये वही औरत थी जो उसे लगातार फोन कर। मैरी उस औरत पर चिल्लाने लगी। उसका पेरोल ऑफिसर भागता हुआ दुकान में आता है। वो देखता है कि मैरी एक कस्टमर पर बुरी तरह से चिल्ला रही है, जिससे उसे लगता है कि शायद मैरी की दिमागी बीमारी फिर से एक्टिव हो गई है। जब मैरी ने पूरी बात बताई तो ऑफिसर को लगा कि ये सब मैरी की इमेजिनेशंस हैं, यानी उसके ख्याल जो सिर्फ उसे ही नजर आ रहे हैं। इसीलिए वो मैरी को वार्न करके वहाँ से चले जाते। तभी बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। मैरी बाहर निकली तो देखा कि ये तो उसकी दोस्त की गाड़ी है। वो सोच में पड़ गई, लेकिन इतनी रात को यहाँ कैसे? जैसे वो गाड़ी के पास पहुंची, उसने शीशे पर लिखा देखा, तुम ये सब देखना पसंद करती हो ना। ये देखकर मैरी डर की वजह से वो फौरन दुकान के अंदर भागी और मालिक को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। मैरी ने एक वॉइस मैसेज छोड़ा, सर यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, लेकिन मुझे पुलिस को कॉल करने में डर लग रहा है। कहीं ये सब अगर इल्यूजन निकला तो मैं दोबारा जेल चली जाऊंगी। इसके बाद मैरी ने फौरन वर्कर को फोन लगाया, लेकिन कॉल लगने से पहले ही उसकी नजर दुकान के बाहर गई। वो कार अचानक से गायब हो चुकी। उसी वक्त दुकान के अंदर अलार्म जैसी आवाज आई। मेरी आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में पहुंची, जहां उसने देखा कि उसकी दोस्त और वर्कर को किसी ने कुर्सियों से बांधा हुआ है। ये देखते ही मैरी का डर और बढ़ गया। वो भागकर काउंटर पर गई पुलिस को कॉल करने के लिए, लेकिन अचानक से उसके सामने वही रेनकोट वाली औरत आ गई, जिसने हाथ में एक लड़की की तस्वीर पकड़ी हुई, जो वो मैरी को दिखाती है और पूछती है, क्या तुम इस लड़की को पहचानती हो? ये वही लड़की थी जिसे जेम्स ने मारा था और तब मैरी वहीं मौजूद, लेकिन कुछ नहीं किया था अब उस लड़की की आत्मा जेम्स को तो नहीं ढूंढ सकी, लेकिन बदला लेने के लिए मैरी को उसने चुन लिया। वो औरत चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। मैरी जान बचाकर भागी, लेकिन जैसे वो दरवाजे तक पहुंची, वो औरत उस पर हमला करके उसे पकड़ लेती और ऊपर बैठ गई ताकि मैरी को जान से मार सके। लेकिन ठीक वक्त पर ऑफिसर्स वापस आए और गोली चलाकर उस औरत को मार देते। फिर वो मैरी को एक खतरनाक बात बताते हैं कि जेल में लाइट चली गई, जिस वजह से बहुत सारे कैदी भाग निकले हैं और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनमें जेम्स भी शामिल। इतना सुनते ही मैरी समझ जाती है कि वो जेम्स को जो बार बार देख रही थी वो वहम नहीं हकीकत। इससे पहले वो आगे कोई बात करते, पीछे से जेम्स आ गया। वो हथौड़े से ऑफिसर को बेहोश कर देता है। फिर वही काम उसने मैरी के साथ भी किया, हथौड़े के हमले से दोनों बेहोश। इसके बाद सीन बदलता है जहां जेम्स ने दोनों को कुर्सी से बांध के रखा था। फिर वो मैरी के सामने ऑफिसर को हथौड़े से मार कर खत्म कर देता है और फिर उसकी दोस्त को भी प्लास्टिक शीट से दम घोंट कर उसने मार दिया। अब बारी थी वर्कर की, जो उस पर पेट्रोल डाल देता है, लेकिन इससे पहले आग लगाता तभी बाहर से कार के आने की आवाज आती। ये और कोई नहीं, ट्रक ड्राइवर था जो पहले जानबूझकर अपना कार्ड भूल गया था। तब जेम्स उसे निपटाने के लिए बाहर चला जाता है। मौका देखकर मैरी खुद को और वर्कर को खो लेती है और एक बंदूक लेकर दरवाजे के पास छुप जाती। ट्रक ड्राइवर को जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं, जो देखकर वो डर गया। पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उसे कहती है कि कहीं छुप जाओ, बाहर मत निकलो, ना ही अंदर जाओ, लेकिन ट्रक ड्राइवर नहीं मानता और दुकान के अंदर आ जाता है। जेम्स पहले से ही उसका पीछा कर रहा था और अब जैसे ही वो पलटा तो जेम्स हथौड़ा सीधा उसके गले में दे मारता है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो गई। जख्मी ट्रक ड्राइवर लड़खड़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे दरवाजा खोलता है, मैरी उसे गोली मार देती है। वो सोचती है कि उसने जेम्स को मार दिया, लेकिन जब पास जाकर चेहरा देखती है तो उसे पता चला कि मैंने गलती से ट्रक ड्राइवर को ही मार दिया है। अब मैरी मजीद कोई गलती ना करे, इसलिए वर्कर ने खुद ही बंदूक संभाल ली। दोनों को लगता है कि अब बैठकर मौत का इंतजार करना बेकार है, इसीलिए उन्होंने खुद ही कुछ करने का फैसला किया। जेम्स को पता चल गया था कि इनके पास हथियार है, इसीलिए उसने बिल्डिंग की बिजली काट दी और अंधेरे में घूमने लगता है। वर्कर के अंदर हिम्मत बाकी नहीं थी कि वो मैरी को लेकर आगे बढ़े, ना ही वो गोली चलाना चाहता था, क्योंकि बंदूक में सिर्फ 2 ही गोलियां बची। तभी बाहर पुलिस की सायरन सुनाई दी और कुछ ही पलों में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। ये देखकर वर्कर और मैरी ने आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अंधेरे में छुपा जेम्स अचानक हमला कर देता है और वर्कर को उसने जख्मी कर दिया। डर की वजह से मैरी एक शेल्फ के पीछे छुप जाती है। अब जेम्स उसे जल्दी से पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने लाइट्स फिर से ऑन कर दी, लेकिन इससे मैरी का फायदा हो गया क्योंकि उसे भागने का मौका मिल गया। जैसे ही मैरी को यकीन हुआ कि जेम्स आसपास नहीं है,
वो भाग कर बाहर निकल कर आता। जहाँ आते ही पुलिस वाले ने उस पर बंदूक तानी और पूछताछ करने लगता है। घबराई हुई मैरी बस इतना ही कह पाती है कि वो आ रहा है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। पुलिस को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैरी ने उसका नाम बताया तब पुलिस को असली खतरे का एहसास हुआ। उसने मैरी को गाड़ी में बिठाया और खुद भी गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जैसे उसने मदद मांगने के लिए फोन किया, अचानक एक गोली उसके सर में लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। मैरी डरते हुए गाड़ी से बाहर आ गई और भागते भागते एक पुराने से घर में आ पहुंचती है। वहां उसने एक लोहे का शॉवल यानी बेलचा उठा लिया ताकि इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। उसके पीछे पीछे जेम्स भी यहाँ पर आ जाता है। उसने मैरी को ना देखकर वापस मुड़ने की कोशिश की, तभी मैरी ने उस पर सीधा शॉवल से हमला कर दिया, लेकिन इसे जेम्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। मैरी वहां से भागते हुए एक पेट्रोल पंप पर पहुंची और वहां ऑफिस में छुप जाती। अब दीवार पर लटका हिरन का सर देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और उसने इसे भी हथियार के तौर पर अपने साथ रख लिया। जेम्स भी पीछा करते हुए वहां आ गया था और वो ऑफिस का दरवाजा तोड़ देता। मैरी जो सामने खड़ी थी उसने पूरे जोर से उस हिरन के सर से जेम्स पर हमला कर दिया। अब काफी स्पीड में टकराने की वजह से सींग जेम्स के आर पार हो जाते हैं। इसके बाद मैरी ने वर्कर का मोबाइल उठाया और पुलिस को मदद के लिए कॉल कर देती है। जेम्स जो अभी भी जिंदा था, उसने दर्द सहते हुए बड़ी मुश्किल से सींग अपने जिस्म से बाहर निकाले और रेंगते हुए मैरी के पास आ जाता है। उसने मैरी की आंखों में देखकर बस एक बात कही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैरी को लगता है कि वो मर चुका है, तो उसने सुकून का सांस लिया। अब क्योंकि वो जख्मी भी थी और थकान की वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा कि जेम्स वहाँ नहीं था, जिसका मतलब था कि वो जिंदा है और वहाँ से भाग गया। और ये चीज आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर मैरी ने बाहर जाकर देखा तो जमीन पर खून के निशान, वर्कर की लाश पड़ी थी और पुलिस की गाड़ी की लाइट्स अभी भी जली हुई। ये सब देखकर उसे यकीन हो गया था कि जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था, ना ही वहम, बल्कि सब हकीकत। इसके बाद हम कुछ महीनों की बात का टाइम देखते हैं, जहाँ अब एक नए शहर में एक सैलून में वो काम करती। एक रात जब वो शीशा साफ कर रही थी, अचानक उसे आईने में जेम्स की परछाई नजर आई, जिसका मतलब कि वो वापस लौट आया। और जब तक मैरी पूरी तरह उसे खत्म नहीं कर पाती, वो उसकी जान छोड़ने वाला नहीं था। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती।